Hello students, today we'll continue with our lecture 2. Last time we had done the quadrant measure, the rules to find allied angles, and today we'll continue further with the same rules, finding various values which we did, that table which we did, 120, 135, 360 degree, negative angle concept and values higher than 360. So today's class we will discuss that, so that the quadrant concept and finding the value gets over, and we move successively then to other lectures. So today's lecture will see that. So today will be we had done this, just for your recap, this is what we did, the various angles, but we did not find the values. So today we'll be discussing how to find the values for them. And if you remember the quadrant rule, right, we had then the first quadrant all positive, second quadrant sine cosec, third quadrant tan and cot, and so on, right. So today we'll be discussing further this, and as I said, please subscribe to our channel so that you keep getting latest updates as and when we post. And we did discuss this allied angles and things like that, and we had completed this table. If you remember, you had made this table, and those who have not attended this lecture, please go back and see the lecture 1, and then you'll be able to follow this. So today's lecture we go on with this values method to find values of trigonometric angles, ratios, sine, cos for these various angles. So today we'll be discussing the values for the angles which are mentioned here. So say we go for sine 120 degree, right. Now if you remember, last time I had discussed that 90 plus theta and 180 minus theta are the two angles in second quadrant. So this is the angle in second quadrant. So if you will see this, then you will get to know that these are the angles in second quadrant, right. So today we will be discussing about these values, sine 120 degree, and subsequently how we will find this. Now one way which you can find is 180 minus 60, either it is 180 minus or 180 plus. So if you see 120 is going to be in which quadrant? It is going to be in second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है 120 डिग्री, 90 से लेके 120. So 90 to 180 would be obviously here. So 180 minus this. Now 180 minus this is obviously, you know, is the second angle quadrant where sine is what? Positive. Sine will be what? Positive. And if you divide this by 90, what are you going to get? 2. Even number, it is not going to change, so it is going to be same as sine 60. So you need to remember the values from, so the values of trigonometric tables which you learned in class 10, you need to be thorough with. कोई नई वैल्यू नहीं आने वाली, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस होना है. सो साइन 60 √3/2, ठीक है. और अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज़ एक बार आप वैल्यूज़ रिकैप ले लीजिए, आपको लॉ याद ही है, हम 0 1 2 3 4 लिखते हैं और उसको अंडर रूट डिवाइड बाई 4 करके आप अंडर रूट ले लेते हैं, तो इसको बाई 4 कर देंगे और उसके बाद रूट ले लीजिए, तो ये सारी साइन की वैल्यूज़ आ जाती हैं. तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री साइन का, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये साइन आ जाएगा. तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये साइन की वैल्यूज आ जाएंगी. सो दिस विल गिव यू साइन, ये 0 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा और ये √3/2 और ये 1. सो बाकी तो आप निकाल ही सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू फाइंड साइन 120. The other way which you can go for sine 120 degree is sine 90 plus 30 degree.
सेकंड कॉन्सेप्ट जो आप यूज कर सकते हैं वो 90 प्लस थीटा। अब अगेन ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन की वजह से पॉजिटिव, पर अब 90 से जब आप डिवाइड करेंगे ऑड नंबर आएगा, ऑड पे वैल्यू चेंज हो जाती है, को रेशियो चेंज हो जाता है, तो दिस विल बिकम cos 30, और cos 30 किसके बराबर होता है, sin 60 के बराबर, √3/2। So that is how we find, and one thing which you have to be aware कि they may also give you sin 2π/3। तो ज़्यादा दिक्कत हो रेडियन में तो आप इनिशियली डिग्री में ले आओ, पाई को 180 डिग्री लिख के, तो 180 माइनस 60 आ जाता है, तो 180 के जगह पाई और 60 जगह π/3, तो वही 180 माइनस थीटा साइन π/3, और आपको लास्ट टाइम ही कराया था पाई 180 है तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। सो दैट इज हाउ वी विल बी फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ दिस एंगल। तो ये मैंने एक 120 का सैंपल आपको दिखाया। सेम वे cos 120 आ जाएगा, tan 120 आ जाएगा, cot 120 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो सबके लिए हम वैल्यूज तो याद नहीं कर सकते, बट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट। और एग्जाम में बहुत शॉर्टकट बताता हूँ, 2π/3 आपको कुछ नहीं करना, साइन π/3 60 है तो √3/2 तो आप लिख ही लो। अब खाली आपको देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है, तो ये क्वाड्रेंट है सेकंड, तो पॉजिटिव लिख दो और काम खत्म हो गया। सो दैट इज हाउ द वैल्यूज आर गोइंग टू बी देयर। नाउ यू कैन हैव ए लुक, आई होप देयर इज अ विजिबिलिटी, राइट। तो आप थोड़ा देखिए, हाँ कैमरा हम एडजस्ट कर देंगे। Now you can see, yes, you will be able to see the values, yes. So see, this is what I explained अभी 120 degree के लिए, and that is how this 120 degree has been found, right? For sine, so this is sine 120. Now suppose this is cos 135 degree. So 135 has been written as 180 minus 45. विच इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। सो नेगेटिव सबसे पहले आएगा रूल 1, और 180 को 90 से डिवाइड करोगे तो 2 into 90 डिग्री आने वाला है। सो अल्टीमेटली विल गेट माइनस cos 145 माइनस 1/√2। लाइकवाइज सेक 150 डिग्री, अगेन 150 है तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, आई विल प्रेफर 180 माइनस, उसमें फिर वो को रेशियो नहीं आता, एक ही रूल चलता है हमारा, चेंज करने की टेंशन नहीं रहती। 180 माइनस 30 नेगेटिव क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, फिर डिवाइड करो 90 से, अगेन 2 into 90 आ जाएगा, तो सेम रहेगा माइनस 2/√3, cos 30 का उल्टा। देखो वैल्यूज आपको थरो होनी बहुत जरूरी है। अब हम बॉर्डर लाइन केस आते हैं 180। अब 180 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 0, पॉजिटिव क्यों, साइन है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट दिख रहा है, और 180 को 90 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो 2 आएगा तो इवन है, चेंज नहीं है, साइन 0। अब कुछ कहते हैं सर 180 प्लस 0 क्यों नहीं कर सकते, आप 180 प्लस 0 कर लो। अगर आप 180 प्लस 0 करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, एकदम ठीक। 90 डिवाइड करोगे इवन, माइनस साइन 0, 0 क्या होता है 0, तो माइनस 0 तो कुछ नहीं है, 0 ही आया। cos 180 आप देख लो, 180 माइनस 0 सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, क्योंकि cos निकाल रहे हैं, 180 पे 90 डिवाइड किया, इवन चेंज नहीं होगा, -1। 180 प्लस 0 करते तो भी थर्ड में cos नेगेटिव होता, वैल्यू सेम आती, ठीक है। ये देखो साइन 180 प्लस 0 भी करके मैंने दिखाया। अब साइन 240 है, तो 240 को क्या कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 240 लाई करेगा, तो या तो 180 प्लस होगा या 270 माइनस, तो 180 प्लस 60, तो ये क्वाड्रेंट हो गया थर्ड। तो थर्ड है तो साइन है या नेगेटिव लग जाएगा, ये नेगेटिव साइन समझ में आ गया। ना 180 को डिवाइड किया तो 2 सेम आएगा, माइनस ही रहेगा, साइन 60 √3/2 चेंज नहीं होगा। बॉर्डर लाइन केस cos 270, रफ एंगल्स निकाल रहे हैं, बाकी तो आप सारे निकाल सकते हैं। cos 270 लेंगे, 270 माइनस 0 हो जाएगा ना। अब 270 माइनस 180 प्लस 90 भी कर सकते हैं, तो 270 माइनस 0 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, क्योंकि माइनस, तो माइनस आ गया। 270 को 90 से डिवाइड करो 3 ऑड, तो cos का क्या बन जाएगा, साइन और 0, तो ये आपका वैल्यू आ गया माइनस साइन 0 एंड दैट इज 0, तो cos 270 ऑड 0 होगा। और आगे जाके वैसे हम पढ़ेंगे कि cos में जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, मतलब 3 into 90, 5 into 90 हमेशा 0 आती है।
साइन 270 आप देख लीजिए, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए, 90 से डिवाइड करिए सेम रहेगा, cos 0 -1। 315 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, फोर्थ में 360 माइनस या 270 प्लस, तो हमने 360 माइनस 45 डिग्री कर लिया। 360 माइनस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आप देख रहे हैं फोर्थ, फोर्थ में tan क्या होता है बच्चे, क्या होता है, नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव लगा दिया। 360 को 90 से डिवाइड किया 4, इवन चेंज नहीं होगा, -1, ठीक है। सेक 330, सेक 360 माइनस 30, तो दैट इज पॉजिटिव क्योंकि फोर्थ है। सेक 30 2/√3। साइन 360, तो आप इस तरीके से 360 माइनस 0 लिखेंगे, माइनस साइन 0, क्यों साइन ही आया, क्योंकि ये इवन है, चेंज नहीं होगा 90 डिग्री। एंड सब्सिक्वेंटली cos 360 डिग्री, cos 360 माइनस 0, cos 0 1। दो रिजल्ट आप लिख लेना, साइन n पाई, मतलब साइन अगर 180 का मल्टीपल है तो हमेशा 0 होगा, तो साइन 180, साइन 360, साइन 540, ये सब 0 आएंगे। cos ऑड पाई, अब n नहीं लिख रहा, cos ऑड पाई मतलब 1 पाई 2 पाई हमेशा -1 होगा। cos इवन पाई, ये आपको आगे वैल्यूज याद रहे इसलिए, तो इसीलिए जैसे cos 361 है, इवन पाई का मतलब 180 इंटू 2 एंड सो ऑन। एंड cos ऑड पाई बाई 2 इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, ठीक है। cos ऑड पाई बाई 2 हमेशा 0 होगा। साइन ऑड पाई बाई 2 में तो आपको देखना होगा 3 पाई बाई 2 पे -1 आता है, 5 पे +1 आता है, सो ऑन, इसीलिए नहीं लिख रहा। तो साइन 180, साइन 360, ये सारे रिजल्ट्स 0 रहेंगे हमेशा, ठीक है। अब आपको आगे देखना है, और मैं ये टेबल आपको बाद में भी चाहूंगा कि बनाएंगे आप लोग, ये टेबल की बात कर, जैसे साइन 120 क्या है, √3/2। तो अब आपको क्या करना है, ये टेबल बनानी है और इस टेबल को पूरा फिल करना है, और आपको ये देखना है कि ये वैल्यूज आप सारी निकाल पाते हैं या नहीं, ठीक है। सेम इन मेथड से, राइट। तो ये सारी वैल्यूज हैं, तो आप वैल्यूज लिख लेंगे, ये सारी, ये प्रैक्टिस करनी है, इससे आपकी रिवीजन भी होगी और थोड़ा सा ग्रिप आ जाएगा इनिशियल लेवल पे ट्रिगो पे, एंड देन यू कैन फिल दिस एंटायर टेबल, राइट। नाउ लेट अस कम टू नेगेटिव एंगल कॉन्सेप्ट। अब हमको नेगेटिव एंगल कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत जगह हेल्प भी होती है और यूज भी होता है। अब जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज, कौन से डायरेक्शन में बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। सो इफ यू आर मेजरिंग एंगल एंटी, आपको मैं फिर बता रहा हूँ, क्लॉक, क्लॉक कभी घर में देखना वो ऐसे चलती है, 12 के बाद राइट साइड में मूव करती है, ये एंटी क्लॉक है, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और यहीं अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो ये एंगल माइनस नेगेटिव आएगा, ये आपका क्लॉकवाइज हुआ। तो अगर इधर मैं 0 से 90 डिग्री लिख रहा हूं तो इधर आऊंगा तो 0 से -90 डिग्री लिखूंगा, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछता है 45 -45 कहाँ लाई करेगा, तो वो यहाँ लाई करेगा। -60 कहाँ लाई करेगा, वो यहाँ लाई करेगा। -120 कहाँ लाई करेगा, आइए भैया, और अगर हम रोटेट करके चलेंगे तो यहाँ पे कहीं -120 लाई, और इसको अगर ऐसे करोगे तो -270, ऐसे करके -360 पे आके रुक जाओ। तो ये नेगेटिव एंगल कॉन्सेप्ट है। अब नेगेटिव एंगल में हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, हमें अगर साइन 30 निकालना आता है तो साइन -30 क्या होगा, इसकी बात होती है, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता है माइनस ही होगा, और ज़रूरी नहीं है। cos 30 है तो cos -30 भी क्या होगा, इसको आइए हम समझते हैं। अब इसके लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये जैसे एक्स एक्सिस मैंने बना रखी है और वाई एक्सिस है आपकी, ये वाई डैश है और ये हम एक्स डैश मार्क कर लिया, ये एंगल थीटा, ये माइनस, तो मैंने ये डिस्टेंस एक्स मार्क कर लिया। क्या मार्क कर लिया, एक्स, और ये डिस्टेंस हमने मार्क कर लिया वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई।
तो पाइथागोरस थ्योरम से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समझ आ गया। ये माइनस थीटा, इसको मैंने ऐसे प्रोड्यूस किया यहाँ पे कि जितना वाई है उतना ये हो, तो ये माइनस वाई हो गया, और ये एक्स है, इसको तो हमने चेंज किया ही नहीं। सो बी ए इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट सी सच दैट बी ए इज इक्वल टू ए सी, और ये वाई है तो ये माइनस वाई होगा, ऑब्वियसली ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जब पाइथागोरस लगाओगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर सेम यही आएगा। अब आप देखो मेरी बात ध्यान से, साइन थीटा बेटा इन ट्रायंगल ओ ए बी साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा ए बी अपॉन ओ बी, मतलब ए बी कितना हुआ बच्चे, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये साइन थीटा आ गया। अब मैं ट्रायंगल ओ ए सी ले रहा हूं बच्चा, और साइन ऑफ दिस एंगल निकाल रहा हूं माइनस थीटा, तो क्या होगा ए सी अपॉन ओ सी, ए सी अपॉन ओ सी, ए सी कितना है माइनस वाई, ओ सी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ये बताओ वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था, साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। आया बात समझ? तो ये फॉर्मूला अब आप याद कर लेंगे कि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। इसी तरह कॉस क्या होता है ये देखना है। अब आइए कॉस थीटा निकालता हूं। अगर मैं इस ट्राइंगल में कॉस थीटा निकालूं तो साइड एडजेसेंट ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए एक्स है अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस माइनस थीटा निकालते हैं, तो जब कॉस माइनस थीटा निकालेंगे ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए कितना है बच्चे एक्स, और ओ सी कितना है ये, तो यही वैल्यू तो कॉस थीटा की आई थी। अब देखो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है साइन थीटा। बस ये दो याद रखो, बाकी तो आ ही जाएंगे। जैसे tan माइनस थीटा है तो साइन बाई कॉस है, क्योंकि साइन नेगेटिव होता है तो tan नेगेटिव ही आएगा, माइनस tan थीटा। कॉट अगर निकालोगे तो वो कॉस अपॉन साइन, तो साइन नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। सेक 1 बाई कॉस, कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो खाली सेक और कॉस सेम आएंगे माइनस या उसमें, एंड बाकी सब डिफरेंट आएंगे। सो दिस इज हाउ यू फाइंड नेगेटिव एंगल्स फॉर्मूला, राइट। तो ये नेगेटिव एंगल के लिए यूसेज क्या है अभी हम देखेंगे। अब जैसे हम साइन माइनस 150 डिग्री निकालना चाहते हैं, क्या आप देख पा रहे हैं, साइन माइनस 150 डिग्री, तो पहले आप इसको माइनस साइन 50 डिग्री कर दीजिए। ये फॉर्मूला कैसे है, ये माइनस बाहर और ये आगे इस फॉर्मूले से। पर 150 कैसे निकालना है मैंने आज ही आपको सिखाया कि 150 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, सेकंड में 180 माइनस 30 लिख लो, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो इधर पहले बाहर आया है, इधर पॉजिटिव ही है, और 180 को 90 से डिवाइड करो 2, चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा माइनस साइन 30 यानी माइनस हाफ। और प्रैक्टिकली इसका मतलब समझिए नेगेटिव क्यों आ रहा है। देखो बेटा 0 से 90 ये, 90 से 180 माइनस में ये, तो बेसिकली माइनस 150 इज एन एंगल विच वुड बी हियर इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड साइन हैज टू बी नेगेटिव, इसीलिए वो नेगेटिव है। यहीं पे अगर तुम tan माइनस 150 डिग्री निकाल रहे होते तो वो पॉजिटिव ही आता। क्यों पॉजिटिव आता, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो अगर मैं सपोज करो बच्चे tan माइनस 150 डिग्री निकालने जाता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस tan थीटा, क्योंकि tan में तो वही चेंज होके माइनस आ जाता। और इसको क्या लिखोगे बच्चे, इसको आप लिखोगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, अब वो मत बोलना सेकंड, आपने थर्ड बोला। अब तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं ना इसको माइनस में, तो सेकंड। tan क्या होता है नेगेटिव, तो एक नेगेटिव साइन और आ गया, और 180 को 90 से डिवाइड किया 2, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ये आ गया 1/√3। क्या आ गया 1/√3। क्लियर। तो दिस आर द फॉर्मूलाज विच विल बी यूजिंग सब्सिक्वेंटली, और ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है। इसी में मैं आपको कॉस करके देखते हैं, हम लोग कॉस भी निकाल लेंगे। कॉस माइनस 150, कॉस माइनस 150 खाली कॉस 150 रहेगा। क्यों बच्चे, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, चेंज नहीं होता। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बात समझ में आई, 180 माइनस 30, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड।
सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव कॉस, और 90 पे चेंज नहीं होगा, और ये होगा साइन 60 के बराबर, बस वैल्यू है तो -√3/2। ना इफ यू रिमेंबर 10th में हमने बहुत जगह बच्चे इसको पढ़ा है, बहुत जगह याद सबको है ये फॉर्मूला। हाँ आवाजें आ रही हैं यहाँ तक कि कॉस टीटा सबकी आवाजें आ रही हैं। आइए उल्टा देखते हैं, 11th में ऐसा कुछ पूछेंगे, थीटा -90 कैसे करेंगे। देखो पहले आप माइनस एंगल के अंदर ही कॉमन ले लो, ये 90 डिग्री माइनस थीटा बन जाएगा। अब मैं 90 डिग्री माइनस थीटा को ए ले लेता हूँ, ये बड़ा सा एंगल है तो मैं ए ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, साइन माइनस ए बन जाएगा, विच विल बी इक्वल टू माइनस साइन ए। बोलो, हमने इसको ए लिया तो साइन माइनस ए माइनस साइन ए क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा, और आपको पता है अभी अभी आप बोल रहे थे हाँ माइनस कॉस थीटा, तो अब अगर थीटा -90 आता है तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। क्लियर हो जाता है। तो इस तरह के कन्वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, इस तरीके के। अब ऐसा ही एक कन्वर्जन दिखाता हूं मैं आपको, ये थीटा -270, तो tan पहले आप माइनस कॉमन ले लो, 270 डिग्री माइनस थीटा। अब 270 डिग्री माइनस थीटा के जगह मैं आपको समझाने के लिए ए ले रहा हूं, तो tan -a बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस tan a। (270 डिग्री माइनस ए, 270 डिग्री माइनस ए। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चे, ये थर्ड, तो थर्ड में टाइम क्या होता है, पॉजिटिव। 270 को डिवाइड, सॉरी ये ए नहीं जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। 270 को 90 से डिवाइड करो ऑड, तो चेंज हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, क्या बन जाएगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉट थीटा। आई होप इट इज क्लियर। तो इसी तरह ये नेगेटिव एंगल्स हम देखेंगे, ठीक है ना। अब हमको सीखना है कि टू फाइंड वैल्यूज ग्रेटर देन 360 डिग्री। अगर मैंने आज आपको पढ़ाया 360 तक, 360 से ज्यादा का मतलब क्या है। अब आप देखो 360 से ज्यादा का मतलब क्या है। बेटा आप एक बार घूमेंगे तो 90 होगा, यहाँ आएंगे तो 180 होगा, ये 270 होगा और ये 360। लेकिन ये तो आपने एक चक्कर मारा, अब एक और चक्कर मारे तो आप 360 डिग्री घूम चुके हो, 90 और, तो ये हो जाएगा 450 डिग्री, और आएगा तो ये हो जाएगा 540 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री और ये आ जाएगा 630 डिग्री, और ये हो गया 720। तो इसी तरह जैसे जैसे राउंड बढ़ाते जाओगे एंगल्स बढ़ते जाएंगे, 810 और ये। तो अगर हमें ऐसे निकालना है, क्या है इनका एक ही फॉर्मूला है, चाहे थीटा एक्यूट हो ऑब्ट्यूज, क्योंकि जब हम 180 माइनस थीटा करते हैं तो हम थीटा को एक्यूट लेते हैं। n इंटू 360 प्लस थीटा साइन थीटा, n कोई भी इंटीजर है, ठीक है, तो n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा हम साइन थीटा ले लेते हैं, cos n इंटू 360 डिग्री cos थीटा, और इस तरीके से हम इसको रोटेट करके सेम ही आएगा। अब हम इसमें वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए, साइन 405 डिग्री निकालनी है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको 360 से डिवाइड करो, और अगर ये नेगेटिव में हो तो भी इजी है, हम पहले नेगेटिव बाहर ले जाएंगे। हम इस तरीके से करते हैं कि n हमारा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर साइन माइनस भी होगा, -405 होता तो मैं माइनस पहले बाहर कर देता, फिर नॉर्मल तरीके से। तो n 1 इंटू 360 करो डिवाइड, रिमाइंडर कितना रहा 45, एकदम ठीक। अब फॉर्मूला लगाओ, n इंटू 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मतलब कि 1/√2। आ गया बात समझ, सिंपल।
अब सपोज करो कि हमें cos 510 डिग्री निकालना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। cos 1 एक ही बार जाएगा 360, कर दो, बचा क्या 150 डिग्री। अब आ जाओ n इंटू 360, n 1 है तो ये हो जाएगा cos थीटा, और जो भी एंगल 360 से नीचे उसका तरीका आता है हमें। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में क्या कर सकते हैं, 180 माइनस या 90 प्लस, तो हम 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री करते हैं। कॉस क्या होता है बेटा सेकंड में, नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख दो। 90 से डिवाइड करो, सेम है cos 30 जो कि sin 60 के बराबर। ये लीजिए आपके लिए, ये निकाल के हमने दे दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जितनी भी वैल्यूज इसके ऊपर या ये जाते रहेंगे, ये अब जैसे tan माइनस दे दिया तो माइनस tan पहले 585 कर लो, एकदम कर लो। अब tan ले लो और इसको 360 से डिवाइड कर दो, 1 इंटू 360 हो गया। तो अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 225, तो प्लस 225 डिग्री आ गई। तो माइनस tan, अभी तो हम 225 ही लिखेंगे, क्यों, n इंटू 360 प्लस थीटा ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब 225 कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, तो क्या लिखोगे 180 प्लस 45, ये माइनस एज इट इज। tan क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐड शुगर टू कॉफी, हाँ पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव एज इट इज, 90 पे डिवाइड करने पे चेंज नहीं होगा, तो माइनस tan 45 डिग्री एंड दैट इज -1। ये तरीका आपको आ जाता है। तो इसी तरीके से आप कोई भी एंगल को आगे जाके निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो, हमें सपोज करो निकालना है सेक और कॉट निकाल लेते हैं, चलो कोई नहीं, तो एक ही बात है, ठीक है ना। और कितना डिग्री निकालते हैं, -1230 डिग्री, ठीक है, 1230 डिग्री। पहले तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, एकदम ठीक। अब 360 से डिवाइड करो, कितने टाइम होगा, 720, 1080, 3 टाइम जाएगा, तो 3 इंटू प्लस कितना बचेगा, 1080 हो गया, तो 150 डिग्री बचता है। तो cos देखो अब n3 हो गया, तो फिर आएगा cos थीटा, और कॉट में भी सेम cot थीटा, तो माइनस तो पहले का ही है, cot 150 डिग्री, और cot 150 को लिखेंगे 180 माइनस 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हो गया और चेंज नहीं होगा, cot 30 डिग्री, ये आ जाएगा √3। और देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, अगर आप रोटेशन देखेंगे इस एंगल का, तो ये 1 2 3 0 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आप अपने आप समझा लो। आपको पता है कि cot माइनस है, तो हम ऐसे घूमेंगे, यहाँ -360 होगा, फिर आप घूम के आओगे -720 होगा, थर्ड राउंड में -1080, और जब आप 150 डिग्री और बढ़ोगे तो यहाँ होगा -1230, एंड दैट इज व्हाई दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। तो आपने ये सीख लिया कि हमारा यूज क्या है, नेगेटिव एंगल जो आज फॉर्मूला पढ़ा, अगर वैल्यूज 360 से ऊपर जाएं तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो दिस इज आई हैव एक्सप्लेन्ड फ्यू, बाकी तो सब ऐसे ही निकल जाएंगे। इसके पहले हमने ये तो खैर भरना ही है, आपको ये सिखाया कि नेगेटिव एंगल्स कैसे निकलते हैं, थीटा -90 हो तो क्या होगा, फिर ये फॉर्मूले में डेरिवेशन भी दिखा दिया कैसे होती है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं, और आज हमने ये भी सीखा कि हम ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं। आपको एक चीज थरो होना है, पाई में भी आपको हर डिग्रीज, इसीलिए हमने लास्ट टाइम कन्वर्ट कराई थी कि पाई और उसको दे, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आपको निकालनी है सारी, और ये रिवाइज करना है, और ये टेबल आपको फिल कर लेनी है, ठीक है ना। चाहे तो आप अभी बैठ के 1 मिनट में कर लें और फिर हम आंसर लिख देंगे,
और आप उसको फटाफट चेक कर लेना, ठीक है। तो आप 2 मिनट ट्राई करो एंड देन सी आर आंसर, ठीक है ना। हम ये टेबल आपको फिल करके देते हैं। सो दिस इज द टेबल विच शुड बी देयर। तो अगर आपने बनाया होगा, आई जस्ट स्पेसिफाई सम ऑफ द वैल्यूज। देखो यहाँ मैंने माइनस इन्फिनिटी एन डी, नॉर्मली नॉट डिफाइंड ही लिखना है, खाली आपको ये बताने के लिए कि वो नेगेटिव इनफाइनाइट लेगा या पॉजिटिव, इसलिए मैंने बताया। क्योंकि कॉट 180 जब देखोगे तो 180 माइनस जीरो करोगे तो माइनस हो जाएगा कॉट जीरो, और कॉट जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी है, पर हमें नॉट डिफाइंड ही लिखना है। प्लस माइनस इरेलेवेंट है, वैल्यूज डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो मैंने माइनस इन्फिनिटी या प्लस या एन डी लिख दिया, बाकी आप ये वैल्यूज देख सकते हैं। दिस आर द वैल्यूज यू वुड बी गेटिंग व्हेन यू विल मेक दिस टेबल, ठीक है। तो आपको ये वाली वैल्यूज आएंगी जब आप टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आप चेक कर लेंगे, रफली ये वैल्यूज आते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। Keep watching our lectures. You can subscribe, right? Press the bell button, send your comments so that we can keep on improving. And this is one of the most interesting topics and we take it very part by part. जैसे एकता कपूर अपने सीरियल्स ले जाती है, हम उसको खींचेंगे नहीं, पर हाँ आधे आधे घंटे के 40 मिनट्स के आपको बहुत सिंक्रो वे में देंगे कि ट्रिगो कैसे करनी चाहिए, एक साथ सारे फॉर्मूले नहीं लगाने। सो विल ट्राई टू अवॉइड दैट and you will find it very interesting, right? So let's get on with our next lecture next time, and till then revise both these lectures and we'll carry forward, right? Thank you.